सरकार साथ चल रही है, सरकार साथ चल रही है। सरकार का मतलब सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री चल, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक जनरल एग्रीमेंट उस कम्युनिटी में बन चुका है। तभी कोई स्टेप कैसे लेगा? सिंपली बिकॉज यू आर नॉट अ मोनार्क, यू आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, you are guided by the rule of law. So when you are guided, a democratically elected government, when it is guided by rule of law, it has to take the consent of, first of all stakeholders in the society. What are the different cornerstones that Gandhian principles touched upon? ठीक है, तो there are different principles. I told you, trusteeship, Gram Swaraj. So trusteeship, Gram Swaraj was touched by this one, right? This article. And socio-economic upliftment of the underprivileged classes was touched upon by this Article 46. This is it. As and when the emergency is imposed. Clear? So here we have the role of 358 and 359. So we are taking case of 358. 358 says Article 19. Article 19. Now it targets what? Article 19. So it says automatically it gets suspended. It gets automatically suspended. That means 6 freedoms. जो 6 freedom हमें मिले थे अनुच्छेद 19 से, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। कब? जब इमरजेंसी लगती है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया? अब 359 ये कहता है एक्सेप्ट 20 and 21, एक्सेप्ट 20 and 21, the articles which are infringed is specified in a specific notification of the president. उसके लिए राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन में जो जो आर्टिकल्स लिखा रहेगा उसी को मान्यता प्राप्त होगा कि वही इन्फ्रिंज होगा। क्लियर है? 359 बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, यानी 14 से लेकर 32 तक, 19 का काम खत्म हो गया। अब ये बोल रहा है एक्सेप्ट 20 and 21, 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, तो रेस्ट जो जो आर्टिकल प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन में होगा वही सस्पेंड माना जाएगा। क्लियर समझ में आएगा? ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, एक लिख के दिखाइए। आपका पहला क्लास है? एक क्लास में आप थे? अच्छा, आप क्लास क्या कहते हैं, ये पहला क्लास होगा आपका? ठीक ठीक। तो जो पिछला होगा मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना। वो क्लास के बाद बैठ में समझा दूंगा आपको, ठीक है? लिख लिया ये वाला पॉइंट? बहुत ही आसान है। करंटली वी आर डीलिंग विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? insofar as the fundamental rights are concerned, they are suspended when the operation of national emergency is operated, right?
There are two articles, 358 and 359, that guides this process. According to 358, Article 19. So what 19 stipulates? The 6 freedoms guaranteed by 19 that gets stipulated, right? So that is automatically suspended. No special notification is required either of president or head of the state. Clear? But 359 ये कहता है कि आप एनफोर्समेंट के लिए जब जाते हैं, आप जब एनफोर्समेंट रेमेडी लाई करते हैं, जो प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन में आर्टिकल आ गए ये सब एक्सेप्ट 2021, उनके लिए वो आर्टिकल थ्योरेटिकली अलाइव होते हैं, लेकिन उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन ही वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जहां कि आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं. Currently we are dealing with a topic that was left, suspension of FR during emergency. उसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे DPSP के. तो अभी पहला पॉइंट लिख लिया. सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे? There are two articles, 358 and 359, that deals with the suspension of fundamental rights. ये पहला पॉइंट होगा. There are two articles, 358 and second is 359, that deals with the process of fundamental rights suspension during emergency. पहला पॉइंट लिखिए सभी लोगों ने. सभी लोगों ने पहला पॉइंट समझ में आ गया? क्या है पहला पॉइंट? ये पहला पॉइंट. अब हम लोग 358 पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू 358 लिखिए. अकॉर्डिंग टू 358, कॉमा, when a national emergency is proclaimed, when a national emergency is proclaimed, लिखा, comma, the 6 freedoms guaranteed by Article 19, the 6 freedoms guaranteed by Article 19 is automatically suspended. 6 freedoms gets automatically suspended. ठीक है. और नोट में लिखिए, no separate order is required. No separate order for their suspension is required. कितने पॉइंट? 2 पॉइंट क्लियर हो गए? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नाउ अकॉर्डिंग टू 359, प्रेसिडेंट नोटिफाइज सेपरेटली. प्रेसिडेंट नोटिफाइज सेपरेटली as to which of the fundamental rights comma in relation to its
in relation to their enforcement, in relation to their enforcement, in relation to their enforcement is suspended. यानी जो भी आर्टिकल अनुच्छेद मेंशन होगा प्रेसिडेंट के उस ऑर्डर में वो थियोरेटिकली अलाइव होगा, लेकिन जो रिमेडी लेने के लिए जाते हैं कोर्ट में, उसका इन्फोर्समेंट सीक करने के लिए जाते हैं, वो अनुमति नहीं मिलेगा। ये कहने का मतलब है। क्लियर है? 358 और 359 क्लियर हो गया। अब यहां पे कॉमन पॉइंट दोनों 358 और 359 में कॉमन पॉइंट ये है कि जो भी एक्ट या जो भी लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा उस दौरान जब इमरजेंसी लगी, हम लोग इमरजेंसी के पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी जब लगती है तो पार्लियामेंट कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है। क्लियर है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो वहां पे जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगा और जिसके तहत या वो कानून जो पास होगा उसके तहत अगर किसी का ये सारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट भी हो जाते हैं, इन्फ्रिंज भी हो जाता है, तो दैट इज इम्यून फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज इम्यून फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। फिर समझो, 358 और 359 के तहत जो भी एक्शन स्टेट लेती है या पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, इन बोथ द केस if the impact of the executive action or the impact of the law, if it infringes the fundamental rights to the extent of that infringement, it cannot be challenged in any court of law. Clear हो गया? एक तो ये है कब, even during emergency and even when emergency ceased to have taken place, then also. अब समझ में आया? ये बात समझ में आया? इस एरिया पे कोई कानून बना है, इस एरिया पे यहां पे जाना पूरा नेशनल में चलेगी, यहां पे कुछ भी कोई कानून पास हुआ, अब आपका ये 19 नहीं मिल रहा है, आपको 14, वहां पे ऑर्डर में लिखा हुआ है 14, 15, 16, 17, 18 ये लिखा हुआ है, वो नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट में जाएंगे भी तो आपको उस रिलीफ वहां से नहीं मिलेगी। क्लियर है? कब? अब तक कब? एक तो तब पहला जबकि यहां पे लगी हो इमरजेंसी, और दूसरा तब भी जबकि इमरजेंसी लगने के बाद, अभी आप सोच रहे हैं ठीक है अभी इमरजेंसी हटने दो तब जाएंगे हम, वहां पे भी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए, वाला पॉइंट। When there is a proclamation of emergency, when there is a proclamation of emergency, any law or executive action, any law or executive action comma, if it takes away or abridge the fundamental rights, if it takes away or abridge, abridge, abridge the fundamental rights, it cannot be challenged, it cannot be challenged in any court of law
in both the cases, comma, when the emergency exists and also when the emergency has ceased to operate. Ceased का स्पेलिंग क्या होगा? Ceased to operate. Ceased to operate खत्म हो गया बस. क्लियर समझ में आया? क्लियर है? ये यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का डन? एक भी ऐसा चीज नहीं समझ में आया हो? एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो. जब सन 75 में इमरजेंसी लगाई गई थी, जब सन 75 में इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो ये तब भी नॉन वैलिड पॉइंट आएंगे सारे? नहीं, ये वाला देखो क्या हुआ 75 में जब इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी. तो उसके बाद सरकार गिर गई और उसके बाद आया मुरारजी की सरकार. उसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और मैं बता दूं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्या हुआ, उसमें बहुत सारा एक्सेस हुआ. एक्सेस में अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ इमरजेंसी में. तो शाह कमीशन का गठन किया गया. किस कमीशन का? टू इन्वेस्टिगेट. किस इन्वेस्टिगेट? क्या इमरजेंसी लगाना जरूरी था? तो सरकार बदल गई थी तो शाह कमीशन बोला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं था. इसलिए वो नेसेसिटेट किया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इमरजेंसी प्रोविजंस में कई तरह के चेंजेस लाए गए. जैसे एक एग्जांपल नंबर 1, अभी हम लोग क्या पढ़े कि इमरजेंसी जो है वो 352 जिस ग्राउंड्स पे लगता है. किस किस ग्राउंड पे लगता है? आर्म्ड रिबेलियन है, एक्सटर्नल वॉर है, ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे. लेकिन 44th में चेंज क्या लाया गया कि जब एक्सटर्नल लगेगा तो 358 का जो 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है वो कब होगा? जब आपका वॉर लाइक सिचुएशन होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं होगा. समझ आपको? 352 जब लग रहा है और ये केस हम कह रहे हैं 44th अमेंडमेंट के पहले वाला, तो वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस में भी सस्पेंड हो जाया करता था. लेकिन 44th आने के बाद क्या हुआ? What onset 44, the very fact that it used to get automatically suspend, now there was a bit of change. Change was that only when on the war-like situation, and it will never be an armed rebellion पे नहीं होगा. इंटरनल तो ऐसे ही खत्म हो गया. वैसे भी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से आर्म्ड रिबेलियन लाया गया था. इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया था और आर्म्ड रिबेलियन शब्द का इंट्रोडक्शन हुआ था. तो उस बेस पे नहीं होगा. ये हुआ था 358 के हिसाब से. क्लियर है? तो अभी क्या लिखा आपने? लास्ट वाला लाइन पढ़िए फिर से. हाँ, ये दोनों क्लियर है. तो लिखिए अब वहां पे ये कीजिए कि आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, six fundamental rights under Article 19, 6 fundamental rights under Article 19, 6 fundamental rights under Article 19 can be suspended only when
the national emergency is declared only when the national emergency is declared on the ground of war or external aggression. And not on the ground of armed rebellion. And not on the ground of armed rebellion. क्लियर है? इसमें एक चेंज और लाया गया, कुछ पढ़ा इसके में एक चेंज और 44 से एक चेंज। अभी हमने क्या बात किया? What we talked about that any law or executive action that takes place within the emergency period, and that law or executive action, if it abridges your fundamental right, in that case it will not be challenged. यही हमने पढ़ा। अब 44 में ये बोला कि एनी लॉ नहीं है, ओनली दोज स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन और दोज लॉ पर्टेनिंग टू इमरजेंसी। अगर कोई दूसरा कानून बन रहा है जो इमरजेंसी, इसका कोई मतलब नहीं है लेना देना, लेकिन वो अगर आपका फंडामेंटल राइट उस समय छीन रहा होता या होगा तो वो बिल्कुल चैलेंज हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट। ये अपने से लिख के दिखाइए, अपनी भाषा में लिख के दिखाइए, फिर समझ लो, लिखना आप ही को है। मैंने क्या कहा था कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन है जिसमें इमरजेंसी ऑपरेट हो रहा है, क्लियर है, वो अगर फंडामेंटल राइट्स जिसका कि बखान किया गया है प्रेसिडेंशियल सेपरेट ऑर्डर में, नोटिफिकेशन में, या 358 के तहत ही, और जो 19 जैसे वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, सिक्स फ्रीडम आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये सब इन्फ्रिंज हो रहा है। अगर उसके लिए आप जाते हैं कोर्ट में तो आपको उस समय तक तो वहां तो चैलेंज नहीं हो सकता है, क्लियर है, लेकिन बाद में भी चैलेंज नहीं हो सकता है, ऐसा कहा। लेकिन ये क्या बोल रहा है 44th ये बोल रहा है कि इमरजेंसी से संबंधित अगर कोई ऐसा कानून होगा या स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा तब तो चैलेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई और दूसरा कानून उसी समय बना हो जिसमें इमरजेंसी लगी हुई थी और वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, तो वो बिल्कुल चैलेंज हो जाएगा वंस द इमरजेंसी सीज टू हैव टेकन प्लेस। क्लियर है? समझ में आ गया? लिख के दिखाइए। तो क्वेश्चन अगर आ गया
कि in what respect 44th Constitutional Amendment Act has effected changes in the provisions of emergency, especially in reference to suspension of FR during emergency. Question आ सकता है तो आप लिख देंगे, ठीक है? 2 पॉइंट आएंगे तो उसके क्लियर है ये वाला? एक बार थॉरली पढ़ लीजिए इस पोर्शन को, उसके बाद फिर हम अगले में चलेंगे। तो अगर पूछेगा 359 का जो केस है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी में या इंटरनल इमरजेंसी में या दोनों ही इमरजेंसी में काम करता है, तो क्या ऑप्शन? 359 में दोनों है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। क्लियर है? अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिखना होगा आपको। ये 20 एंड 21 जो है, यू कैनॉट सस्पेंड इट, बात जो हुआ है ये भी 44वें में आया है। ये लिखिए 20 एंड 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड and 21 cannot be suspended and this provision was brought to existence by 44th Constitutional Amendment Act. और ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो जाता है। आप देख लीजिए समझ में आया है नहीं। अगर कोई स्टेट इमरजेंसी घोषित करता है, इमरजेंसी घोषित करता है, तो क्या वो चैलेंज हो सकती है? इमरजेंसी चैलेंज हो सकती है? हाँ, देखो इसमें क्या था कि इमरजेंसी कौन लगाता है? 38th में ये था कि प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन, इट वाज इम्यून फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। 38 में। 44th में क्या गया कि इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम, इट कैन बी चैलेंज्ड। इमरजेंसी चैलेंज हो सकती है कि इमरजेंसी के दौरान ऐसे जो लॉस लाए गए हैं, वही सेम चीज वो उसका तो हम लोग जिक्र कर ही दिए, लेकिन इनका क्वेश्चन अलग था। इनका क्वेश्चन क्या था? द वेरी फैक्ट फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीमती गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड डिक्लेयर्ड बाय फखरुद्दीन अली अहमद, it was because the president has to act as per the aid and advice of the prime minister. This is what the protocol says, isn't it? So when you impose it, the entire country will ask you a question. If it is imposed, our emergency is imposed, that means that there are certain grounds.
Do you have that grounds, logical grounds? Even in the clause it is said that there is an imminent threat. Warlike one year. If the president is satisfied that there is an imminent threat and situation can be or likely to create a situation where the disturbance will be almost like that of the national emergency, then also president on his own volition, right, can declare emergency. Initially it was what? We all know that अभी 44th में एक और चेंज आया है. 44th में what is you tell me and I'll impose no unless I get a written recommendation from the cabinet. Unless I get the written recommendation of the cabinet, I cannot do it. But before 44th, it was my own volition. It's by aid and advice of the Prime Minister. ये check and balance तो चल रही clear है. Any further question? हम लोग अभी आप नए आए हैं. We are dealing with suspension of FR during emergency. तो आप देख लीजिएगा नोट्स. हम लोग कहाँ तक किए थे कल? 40 निकाल लीजिए अपने अपने कॉपी. 43B में क्या क्या हुआ था? Yes. 43B क्या था? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी था ना. क्या लिखा था 43B में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब आ जाइए 44 में. The state shall endeavor to secure. The state shall endeavor. ENDEAVOUR. हाँ? नहीं, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में है, मिसलेनियस में है. ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है. 44th मैंने इसमें नहीं लिखवाया होगा, अगर आप देखेंगे तो 44th उसमें नहीं है. तो 44th में क्या लिखा है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स, to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कल भी इस चीज पे जिक्र किया था. यूनिफॉर्मिटी डिजायरेबल है. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मायने में? यूनिफॉर्मिटी डिजायरेबल है, लेकिन एक सिंगल गो में अब सारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को सिमिलर कर देंगे तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. ये लिख लीजिए. किस केस में? ये भी लिखिए. इन केस ऑफ बंसीलाल पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. In case of Bansilal Patil versus State of Andhra Pradesh, Supreme Court observed and said that uniform law for all persons
may be desirable, but its enactment in one go, its enactment एक साथ in one go will prove to be counterproductive to the unity of the nation. अब देखो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीज आता है, किस यूनिफॉर्म लॉ की बात कर रहा है। तो पहले फैमिली लॉ लिखेंगे। क्या है पहले? फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ। ठीक है, ये फैमिली लॉ और ये सब जो अनकोडिफाइड है उसके बारे में कहा गया। उसमें समरसता, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या है उसमें, क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। मैरिज एज पर हिंदू लॉ सब बराबर होना चाहिए। तो कैन वी थिंक ऑफ टू बी सेम, कैन वी एफोर्डेबिलिटी उसकी होनी चाहिए ना। तो लॉ ऑफ मैरिज, लॉ ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, लॉ ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, ये सारे किस में आ जाएंगे? यूनिफॉर्म में। ठीक है, टाइम ऑफ प्रेयर, can it be the same for Goans and Maharashtrian both, or Bihar? No, it cannot be. Same costumes while attending prayers, ये सब चीज आएगी यूनिफॉर्म लॉ में, सब आना चाहिए ना। तो जैसे जैसे जितना हो पा रहा है जहां जहां, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ये सब चीजें तो भड़कती आग ना, रिलीजन का मामला है ना। अब मुस्लिम्स कैन हैव पॉलीगैमी, तो पिटिशन वॉज फाइल्ड, बट सुप्रीम कोर्ट डिडंट एंटरटेन दैट पिटिशन। व्हाई टू इंटरफेयर इन दैट? क्लियर है? तो ये सब यहाँ ये आप जो बात कर रहे हैं रिफॉर्म लॉ में, एचयूएफ क्या है? एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, सब उसमें फिर इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्या? तो सर इसको आर्टिकल 44 को सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? देखो, सोशियो इकोनॉमिक, ये सोशल मामला है, मामला सोशल है। इकोनॉमिक का मामला इसमें इसलिए नहीं है कि अब अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं। तो ये लार्जली देखो क्या है कि जिससे बिखराव पैदा ना हो, तो वहां पे बिखराव पैदा ना हो, अनडिवाइडेड है तो आ तो गया उसके मामले में, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिखराव पैदा ना हो। कब बिखराव पैदा होता है? जब डिफरेंसेस क्रिएट होता है। बिखराव पैदा कब होगा? जब डिफरेंसेस क्रिएट होगा। क्लियर है? तो लॉ तो ये कह रहा है कि समान रूप से होना चाहिए ये, लेकिन ये क्या है? ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये डिजायरेबल है। इसलिए बोले इन्फोर्सेबल नहीं है, ये डिजायरेबल है। अब जहां जहां हो सक रहा है कर रहा है, लेकिन अगर नहीं करे तो इस पे पिटिशन फाइल नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्शन ही है डीपीएसपी का, जस्टिसेबल नहीं। तो ये मैटर है। तो लार्जली इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है आपको, उसमें अभी सरकार जैसे ट्रिपल तलाक वाला मामला है। अब सिंगल तलाक में किसी को आप बाइफरकेट कर देना था, वो भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया था। लेकिन जब सरकार साथ चल रही है, सरकार साथ चल रही है, सरकार का मतलब सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री चल, इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? It means एक जनरल एग्रीमेंट उस कम्युनिटी में बन चुका है। तभी कोई स्टेप कैसे लेगा? सिंपली बिकॉज यू आर नॉट अ मोनार्क, यू आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यू आर गाइडेड बाय रूल ऑफ लॉ। So when we are guided, a democratically elected government, when it is guided by rule of law, it has to take the consent of, first of all stakeholders in a society. Why? क्योंकि
गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट एजेंडा कब होगा? जब सब एक मत होगा, सब तब ना। तो एक मत बनाने में समय लगेगा, और जब एक मत बन गया तो ट्रिपल तलाक इंप्लीमेंट हो गया, उसको खत्म कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमने क्या लिखा अभी? आर्टिकल 44 के बाद आ जाइए 45 पे। कोई बता सकता है 45 क्या है? बहुत ही इस पे चर्चा हो चुकी है। क्या ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? किन बच्चों के लिए? या 6 साल तक के लिए? 6 साल तक के लिए, ये ध्यान रखना। 60-40 यहाँ कर दो, 6 तक है, अर्ली नेटल से 6 तक। 6 to 14 वाला आरटीई वाला है, और 6 to 14 कहाँ पे है? और कहाँ 6 to 14 है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, चलिए ये लिखिए, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। To provide early childhood care and education for all children until they attain or complete the age of 6 years. क्लियर है ये वाला? इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, क्लियर है? 48 पे आ जाइए। 46 हुआ था क्या? 46 नहीं हुआ था। लिखिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या 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 नेशन है किसके अंडर में? गांधीयन था ना। 46 कर रहे हैं हम लोग, तो 46 तो गांधीयन है। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? 46 से 44 किया हमने, 45 कर लिया, अब 46 कर रहे हैं। क्लियर है? तो मेरा प्रश्न है कि 46 है किसमें? गांधीयन में है या सोशियो इकोनॉमिक में है या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में? जल्दी बताइए। 46 मैंने क्या लिखवाया? 46 इसमें लिखवाया है। 46वां देखो, चेक करो, गांधीयन में है या सोशियो? 47 गांधीयन में कौन कौन सा आर्टिकल आ रहा है? हाँ, ठीक है। 46 तो इंटेलेक्चुअल में है। ठीक है। सर ये सारे हम लोग मिसलेनियस ही कर रहे हैं ना, कि अब इसमें और डिवीजन से गांधीयन और सोशल। नहीं, देखो इसमें जो अभी मिसलेनियस वाला सिर्फ एक ये वाला आया है,
आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, ठीक है। 45 कौन सा था? प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर। आप बताइए क्या होना चाहिए? 45 किसी से डील करता है देखो। देखो अगर उसको गांधीयन में भी डाल देते हैं आप, तो गांधी स्टूड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस। So you cannot debate it that it exclusively belongs to socio-economic. Even Gandhi had a vision of upliftment of what? Weaker sections, right? So to that extent, if I take scheduled caste, scheduled tribe, weaker section, educational weaker, तो वो आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल उनका था, स्वराज था, ग्राम स्वराज था, ठीक है। उसके बाद आपका चरखा था, ठीक है। इकोनॉमिक इमेंसिपेशन था, ठीक है। नॉन वायलेंस और ये हम लोग ट्रुथ तो हम लोग सभी जानते हैं। नहीं, इसके आप ये कह सकते हैं कि डीपीएसपी में, इन रिलेशन टू डीपीएसपी, व्हाट आर द डिफरेंट कॉर्नरस्टोन्स दैट गांधीन प्रिंसिपल्स टच्ड अपॉन, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स, आई टोल्ड यू, ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज। तो ट्रस्टीशिप या ग्राम स्वराज वाज टच्ड बाय दिस स्टोन, राइट, दिस आर्टिकल, and socio-economic upliftment of the underprivileged classes was touched upon by this article 46. इस तरह से कर सकते हैं। ये सोशल इकोनॉमिक में है। हाँ, so ये अभी सोशल इकोनॉमिक डालो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको गांधीयन में भी अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, why should it not be included in Gandhian principle? Should it not be included in Gandhian principle? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, what is your view? UPSC is interested in your view. UPSC क्या है वो नहीं जानता है, वो नहीं देता है क्या है ये, वो जान रहा है कि आपका व्यू क्या है इसके ऊपर। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि वो ये वाला जो 45 है जो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है, व्हाई शुड इट नॉट बी इंक्लूडेड, व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल? इट इज वेरी मच। तो वहां पे लिखे गांधी, वी नो दैट गांधी जी स्टूड फॉर these are certain segment, so dimensions that touched upon, but yes, out of these 4 dimensions 2 are amicably covered by this article, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। देखो वहां घुमाना है, वो घुमाएगा तो आपको भी घुमा के बढ़िया से प्रस्तुत करना है, जिसपे आपको रैंक मिले पूरा। बात समझ रहे हैं? फैक्चुअल्स जानिए क्लास में, फैक्चुअल्स, लेकिन सोचने का तरीका। आज जो हम प्रश्न कॉपी भी जो हमने चेक किया है, तो ये शुरुआती दौर वाला कॉपी में बहुत सारी दिक्कतें आई। कोई पूछा कुछ और है, लिखा कोई, मैक्सिमम वही है, मैक्सिमम आप लोगों का सारा कॉपी। इवन अरशद का भी 2-4 क्वेश्चन ऐसा हो गया, नॉट एक्सपेक्टेड, तो उसने भी वैसा पूछ रहा है, कुछ लिख रहा है। फैक्चुअल एरर्स तो हो ही रहा है, लेकिन पूछ रहा है कुछ, लिख रहा है कुछ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या बोल रहा है? वो बोला कि डू यू फील दैट द फेडरल फीचर सेटल्ड बाय, मतलब ये व्यू पॉइंट क्वेश्चन था ना, तो आपको सेलियंट फीचर्स थोड़ी लिखने कह रहा है कि 1935 को उठा के लिख दिए कि डायरेक्ची फेडरलिज्म का क्या पार्ट, ये सब नहीं। तो वहां वो जो सब लिखता ही नहीं है। वे ऑफ आंसरिंग, व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन which will secure you a good marks and good rank. That is what my aim is all about. तो क्या लिखा अभी 46 में? क्या लिखा पूरा पढ़ो, पूरा तुम पढ़ो। द स्टेट शैल प्रमोट, ऐसे कर दो, द स्टेट शैल प्रमोट। अभी स्टेट प्रमोट करेगा ना, द स्टेट शैल प्रमोट educational and economic interests of the weaker sections. अब यहां पे देखो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट कहा गया है, किसका?
वीकर सेक्शंस का, पर्टिकुलरली SC ST मेंशन है, लिख लीजिए, पर्टिकुलरली दोज ऑफ SCs एंड STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एकदम स्पेशली मेंशन है यहां पे SC ST। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पढ़ो फिर, अब बनाने की कोशिश कर। मान लो सपोज तुम थोड़ा देर के तुम ही UPSC बॉडी, कैसे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने की भी कला होनी चाहिए। कौन सा? ये वाला 46 40? हाँ, सोशियो इकोनॉमिक है, बस सोशियो इकोनॉमिक, गांधीयन भी हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मान लो कि किसी का जमीन है जो SC ST को बिलोंग करता है, वो जमीन SC ST कम्युनिटी किसी व्यक्ति का है, कोई जमीन, वो हम लोग बात कर रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, इन आर्टिकल, इन रेफरेंस टू दिस आर्टिकल 46, और उसको हम ट्रांसफर कर दिए किसी नॉन ट्राइबल्स को। क्या कर दिया हमने? ट्राइबल्स का जमीन, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स का जमीन हमने किसको कर दिया? नॉन ट्राइबल्स को कर दिया। क्या, और इस कंफ्लिक्ट आ गया न्यायालय में। कंफ्लिक्ट कहां जाएगा अब? न्यायालय में, कोर्ट में। क्या लगता है तुम्हें, क्या होना चाहिए? डिफाइन ही करना है कि स्टेट को प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन के। अभी ST वीकर सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन बताओ बस, क्या लगता है? यानी मान लो एक जिस परिप्रेक्ष्य की बात हम कर रहे हैं, ये फला जमीन किसको बिलोंग करता था, किसको करता था? STs ट्राइबल्स को, नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर हुआ। अब न्यायालय गया, कोर्ट ने देखा कि यहां इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाधित हो रहा है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि देयर शुड बी अ लॉ दैट प्रोहिबिट्स the transfer of land from tribal to non-tribal, and it is very much valid in this context. Clear है? यानी वो इशारा किसको किया? पार्लियामेंट को। इस इशारा किसको किया? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट अब लॉ पास करे, वो अपने माथे से हटा के किसको दे दिया? पार्लियामेंट ने। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। देखो, कुछ कुछ मैटर ऐसा है जिसमें कि अब जैसे कॉज स्लॉटर को रोकना चाहिए, ये कोर्ट नहीं कह सकती है, ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना होगा ना। बात समझ रहे हो? स्लॉटर ऑफ कॉज हैज टू बी स्टॉप्ड। द कोर्ट कैन नॉट, कानून बना ही नहीं सकती वो, उसके दायरे में नहीं, वो पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव एक्शन का दायरा है वो। ठीक है, तो उसी तरह सबका अपना अपना स्फीयर एंड ज्यूरिसडिक्शन है। हाँ, जब वो कानून बनाती है, जब इंप्लीमेंट होता है, तब न्यायालय के पास आएगा, तब समझ में आता है वो चीज। बट ये जो कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और सेंसिटिव मैटर में कोर्ट क्यों जाएगा? कोर्ट का काम तो वो है ही नहीं। हाँ, उसके बनाए हुए कानून का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कोर्ट उस संज्ञान ले सकती है। कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, राइट? ये चैप्टर, 3 चैप्टर में पहले, DPSP FR, बड़ा खतरनाक चैप्टर है सर। कौन कौन? FR DPSP, ये दोनों चैप्टर को इतने 50-50 बार पढ़ जाओ, इतना गहराई से पढ़ो। पॉलिटी फिर तुम्हारा अपना, उसके बाद किसी पॉलिटी में कोई दम ही नहीं है, इसके बाद किसी सब में फिर याद रखना है, समझने वाला यही है बस। पॉलिटी का कोर है कौन? DPSP। दोनों का जो इंटाइटी का जो इंटेंगलमेंट है, कहाँ कहाँ तार किससे जुड़ा हुआ है, कि कौन कौन केसेस हैं, यही पूरा पॉलिटी इसी पे कहने वाला कि ये चीज अगर आप उठा लिए
तो फिर पॉलिटी में कोई खास बचता नहीं है। अब प्रेसिडेंट के पावर है तो याद कर लेगा, कोई भी याद कर लेगा। मालूम है वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन है, कैग का क्या है, एजी का क्या है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कौन कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और आप 6-7 साल के क्वेश्चन को अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन उस वाले मामले में, इसमें नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि आए दिन, क्यों, वाई से एवरी डे इज अ न्यू डेवलपमेंट और इट अफेक्ट सिटीजन्स, इट अफेक्ट सिटीजन, और सिटीजन का फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है और नए नए केसेस आ रहे हैं। और कितना आप उसको छुपिएगा, escape, you can't escape that, तो यू हैव टू कीप इन ट्रैक। इसीलिए मैं पेपर पढ़ो, इसीलिए मैं बोला पेपर पढ़ो, और उसके जो नए नए चीज है वो आप यूज ऐसे में भी कर सकते हैं। और खास करके जब आप PSIR ऑप्शन तो खैर सोचना ही नहीं है, यू हैव गॉट इनफ स्कोप। ठीक है, तो हम लोग किस में क्या लिखे अभी? अब हम लोग किस में चलेंगे? 47 क्या होगा? गांधीयन होगा कि नहीं होगा? क्यों गांधीयन होगा? हाँ? अल्कोहल उसको पसंद नहीं था, ये आप लोगों के खिलाफ था, वो देख लीजिए। अगर इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस मेडिसिनल पर्पज से यूज हो रहा है तो भी वो खिलाफ थे। इंटॉक्सिक मेडिसिन में भी यूज हो रहा है। कैसे? मेडिसिन अदर देन मेडिसिन, मेडिसिन में तो उसको क्या खिलाफ होगा? इट इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ टू द एक्सटेंट दैट इंजूरियस टू हेल्थ। गांधीयन प्रिंसिपल क्या हुआ कि यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जितने जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस अदर देन मेडिसिनल यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस और ड्रग्स जो भी है, देन इट इज स्टेट शुड प्रमोट द प्रोहिबिशन ऑफ दैट। स्टेट क्या कर रहा है? शराब पीने के लिए नहीं, शराबबंदी पर, शराबबंदी ही कोई इफेक्ट मिलाएगा। ठीक, लिख लीजिए वहां पे। The state shall take steps। ये पंखा चला देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को भी वो घुमा दो, इन लोगों को भी गर्मी लगे, ऐसे घुमा दो। ठीक है। अच्छा, दिस AC इज नॉट वर्किंग। चलो ठीक हो जाएगा। क्या लिखा? द स्टेट शैल, क्या लिखा? द स्टेट शैल प्रमोट, द स्टेट शैल सिर्फ लिखा है। ओ क्या लिखा? टेक स्टेप्स। किस चीज में? टू प्रोहिबिट, लिखिए टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स that are injurious to cigarette smoking is injurious to health। और स्टेट ये भी कहा गया कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करे, इस पे भी स्टेप लीजिए। लिखिए द स्टेट शैल ऑल्सो टेक स्टेप्स, the state shall also take steps to improve public health। फला आदमी, क्वेश्चन यहां पे ये है, ट्रेड कर रहा है शराब पे, बिजनेस कर रहा है, क्या ये उसका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? हाँ भाई, हमारा
हम शराब बेचकर कमा रहे हैं, हमारा अर्थोपार्जन जो हो रहा है, हमारा घर चल रहा है। अब हम सिक्किम जाके हैं, यहाँ मेरी बदनामी नहीं होगी, मैं बिहार का हूँ, तो चला गया सिक्किम, अब वहाँ शराब बेचने लग गया और वहाँ पैसे कमा के घर भेज रहा हूँ, शराब की फैक्ट्री धीरे लगा ली, तो हम वहाँ परमिसिबल है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि कोई बिजनेस कर सकते हैं हम, कौन रोकेगा हमको? हाँ, यहाँ क्या है, यू आर डूइंग इट एट दी कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बोथ एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। क्योंकि विक्टिम्स कौन होता है? अपने तो पी लेता है, फिर जाके विक्टिम्स कौन होता है? घर वाले होते हैं, होता है, देखें, वो मार पिटाई घर में शुरू हो जाती है। वैसे ये लिख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, वर्डिक्ट दिया है इस पे। लिखिए, इन द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस K distillers, in the state of Kerala versus K distillers, डिस्टिलर्स है, शराब बेचने वाला डिस्टिलर्स कंपनी है। डिस्टिलर्स सबसे ज्यादा शराब से कमा रही है, हाँ, सरकार की सबसे ज्यादा शराब से कमा रही है। देखो कितना मन लग रहा है डिस्कस करने में ये चीज। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, देखो, लिखो पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। ये केस का नाम लिख लिया ना, क्या क्या लिखा? के डिस्टिलर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट a citizen has no fundamental right to trade or business in liquor as beverage। बेवरेज का मतलब जानते हैं हम, पेय पदार्थ, बेवरेज। फिर लिखिए, द स्टेट कैन प्रोहिबिट कंप्लीटली, the state can prohibit completely such trade or business क्या लिखा? And the state can also create monopoly. And the state can also create monopoly. And the state can also create monopoly का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। यानी अब क्या हो, हम आपको बेचने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेचने का राइट किसके पास है? स्टेट के पास है, एकाधिकार हो गया। तो सेंटेंस को पूरा कीजिए, कैसे लिखेंगे उसको? मोनोपोली का क्या होगा? सेंटेंस को पूरा कीजिए, इंग्लिश है ये, कैसे लिखेंगे? क्या होगा उसके बाद? 2-3 शब्द क्या ऐड होगा जो पूरा होगा सेंटेंस? फिर से कैन क्रिएट मोनोपोली इन इटसेल्फ, वहां पे डालिए प्रोनाउन, इन इटसेल्फ। सेल्फ लग जाता है तो वो किस तरह का प्रोनाउन बन जाता है? योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, हिमसेल्व्स। हाँ, माय और माइंड में क्या डिफरेंस है?
भाई पॉलिटी पर थोड़ा सा मैं Sir, mind means saying to our own self, but mind means showing ownership of something. देखो सिंपल है. इफ आई से ध्यान दो बोर्ड क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. मामला है ये और ये, इन दोनों के वर्ड कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है ना. इसकी दोनों के क्या बनाना है आपको. आपका मेंस में क्वेश्चन आ गया इंग्लिश में क्या, अंडरलाइंड वर्ड्स के वर्ड क्लासेस बताना है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है. तो थोड़ा सा हट गया सब्जेक्ट से बात, चलिए तो बता देता हूँ. अब आप बताइए कौन सा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ये कहाँ से उठा के, जो वर्ब का पार्ट है. ये मेरा घर है, वह घर मेरा है. दोनों में मीनिंग में कोई डिफरेंस है क्या, पक्का. मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा, मैं इन इटसेल्फ कर दीजिए पहले. मैंने यहां से स्टार्ट किया था ना कि जिस भी प्रोनाउन में SELF लग जाए, क्या ना, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, VS प्लूरल VS लग जाएगा, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लियर है. अब इस पे आइए, ये माई जो है इसके बाद क्या है, यहाँ पे नाउन है ना. तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को. तो ये बन गया क्या, एडजेक्टिव. कैसा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. और ये इसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बन गया पजेसिव प्रोनाउन. एक ऊपर वाला क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव. व्हाई, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय नाउन, इट इज क्वालिफाइंग अ नाउन, व्हेreas दिस इज प्रोसीडेड बाय ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. ठीक है. हाँ, ये तो मैं आई टीच इंग्लिश ऑल्सो, दैट्स क्लियर. चलिए अब हम लोग मूव कर जाए पॉलिटी फटाफट. क्या लिख दिया अभी इसमें, इट से. देखो कितना बड़ा चीज बोल दिया सुप्रीम कोर्ट. कोई राइट नहीं है आपको, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. अच्छा, जब इसका मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, तो क्या अगर कल तक हमारा बिजनेस चल रहा था और आज आप ये तो बिजनेस लॉस हुआ ना हमको, तो हम तो किसी का क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी तो नहीं किए हैं, जो CRPC ऑफ लॉ. तो क्या हम इसमें, हमको रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से ऑर्डिनरी लीगल राइट में. माय क्वेश्चन इज the right to carry on profession, and you have stopped it. You have issued an order prohibiting the sale of liquor, right? And I was dealing in liquor, so I got what, business loss. So to what extent state will compensate me? I'll go against the state. अब वहां पे दो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे होमवर्क लिखिए. Can in this case individual go against the state? Can in this case any individual go against the state? और ब्रैकेट में लिखिए, for the enforcement of writs इस पे थोड़ा मंथन करके आइएगा. ठीक है, क्लियर है, होमवर्क समझ में आ गया. ठीक है.
47 क्लियर हो गया या नहीं? 48 पे आइए। 48 क्या है? गांधीयन है या नॉन गांधीयन है? ये तो पक्का गांधीयन है। लिखिए, द स्टेट शैल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, and also take steps to improve and preserve, to preserve and improve, and also to take steps to preserve and improve क्या? breeds, cattle breeds, है? improving the cattle breeds, और लास्ट में है and prohibiting the slaughter of cows and calves and other draught and milch cattle. काउज कर दीजिए, कॉमा काव्स कर दीजिए, उसके बाद ड्रॉट एंड मिल्च कैटल कर दीजिए। क्या लगता है इसमें आपको 48 में? कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता तो है नहीं इसमें, क्लियर है मामला। गौ हत्या पाप है, बचपन से ही हम लोग सुनते हुए आए। तो और अगर कहीं प्रमोट हो रहा है, अब यहाँ पे भी दो बात है। लेदर इंडस्ट्री, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, तो वहाँ कैसे करेंगे? चमड़े का सामान तो आप लोग, हम लोग सब यूज कर रहे हैं ना। पर्स तो है ही एटलीस्ट सबके पास, हम लोगों के पास पर्स तो यूज कर रहे हैं। नहीं, हंसने और मुंह छुपाने की जरूरत नहीं, तो सही भाई उसी जानवर का ना बना है वो। अगर जाते हैं, क्या प्योर लेदर है क्या? पूछते तो हैं, ये प्योर लेदर है क्या? हाँ, तो लेदर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट सच लेदर्स? Is only when they are slaughtered that they are skinned and that skin is out for sale. अब आप लोग सोचने लग गए कि हम लोग जो सामान यूज कर रहे हैं, बताइए किसी के चमड़े का बना हुआ है, और यहाँ कहा जा रहा है संविधान में क्या गौ हत्या पाप है। अब ये डिकॉटमी है, यहाँ पे भी लिखिए डिकॉटमी, इस कैसे रिजॉल्व कीजिएगा, इस पे भी मंथन कीजिएगा। और कौन कौन सा डायमेंशन निकल कर आता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और भी तो लेदर होता है ना, सिर्फ कैटल लेदर से कोई आर्टिफिशियल वैक्सीन से, वो सब हम नहीं जानते हैं। लेदर रहता है ना, प्योर रहे, प्योर तो चाहते तो प्योर ही है ना हम लोग। शूज काफ लेदर का है, वेरी गुड, शूज काफ लेदर का 2500। हाँ चलो अच्छा है, तब 2500 देंगे तो आप उसके लिए पे करते हैं। अब मन अच्छा लग जाता है, आपको खुश हो जाते हैं, और सबको पहन के दिखा, देखो ये ओरिजिनल लेदर का है। ओरिजिनल लेदर वो भाव कहाँ गया? हाँ, कंजम्पशन ऑफ बीफ ऑल्सो। सो दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन डिस्कस हियर इन द क्लास, and so that none of our intention is not to bring any disturbance in the sentiments of fellow being, but
Yes, of course, the issue should be crystal clear what the law says. We are more interested in what the Constitution stipulates and what the law says. समझ गए आप? तो इसको ये होमवर्क कर दीजिएगा. अब आइए 48 के बाद हम लोग चलते हैं अब किसमें? 49 में. 49 बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं 49 में. अब देखिए ताजमहल जो है मॉन्यूमेंट है. कहा क्या गया? स्टेट ऐसे. अब वहां पे आगरा में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको पता चला होगा कि आगरा का वो ताजमहल का जो येलोइश कलर का हो रहा है. बताओ, प्रदूषण से. वेरी गुड, प्रदूषण से. तो क्या स्टेट, अब देखो यहाँ पे स्टेट क्या ऐसा स्टेप ले सकती है? वहां का जो आगरा का जो डीएम है वो चलेगा प्रोटोकॉल से, क्या भैया क्या कहता है यहाँ पे, वो मॉन्यूमेंट एक्ट में चलेगा कि कितने दूरी पे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको पास ऑन ऑर्डर करेगा. ये सब करेगा ना, ताकि मॉन्यूमेंट बचाया जा सके, संरक्षण हो सके, प्रिजर्वेशन हो सके. समझे? तो यही बोल रहा है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स. लिख लीजिए, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट. State shall protect every monument or place of historic interest. बहुत इजी है. कोई 50 इंपॉर्टेंट है. सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल. तो यहां क्या हो गया? एसओपी हो गया ना. यस सर. एसओपी हुआ नहीं हुआ? कैसे कैसे हुआ एसओपी? सेपरेशन ऑफ पावर. सिंपल सा चीज है कि जब यह नहीं था, जब यह एक आर्टिकल नहीं था, बाद में आर्टिकल आया, बाद में इफेक्ट हुआ, और कलेक्टर या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर थे वो जुडिशरी का पावर भी उन्हीं के पास था. बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग हो गए. एग्जीक्यूटिव मींस अब वो एग्जीक्यूट करेंगे, सुनवाई का काम इनके पास चला गया. अभी भी वही होता है. सिविल जज है वो सुनते हैं, सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, वो चुनते हैं. ठीक है. लेकिन अब एक शहर डिस्ट्रिक्ट में है, डीजे भी है और डीएम भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, आईएएस, और डिस्ट्रिक्ट जज भी है, डीजे भी है. तो सिविल मैटर में डीएम से ज्यादा पावर डीजे के पास है. डीएम से ज्यादा पावर किसके पास है? डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, सिविल लॉ के मामले में. लेकिन उसके पास मजिस्ट्रेट का मतलब अब क्या हो गया? रिवेन्यू के मैटर में, इसमें रिवेन्यू के मैटर में उसका पावर ज्यादा है, क्योंकि वो कलेक्टर है. क्या है? नाम ही क्या दिया उसको? कलेक्टर. कलेक्टर ऑफ व्हाट? रिवेन्यूज. वहीं से टर्म निकला है, कलेक्टर ऑफ रिवेन्यूज. ठीक है. तो यहां पे आप लिख लेंगे कि बिफोर दिस आर्टिकल केम इनटू एग्जिस्टेंस, the judicial and executive powers, the judicial and executive powers
were exercised by executive at large, but later on, executive at large, but later on, executive magistrates were devoid of their powers in respect of civil jurisdiction as a separate entity in judiciary had already been functioning to take care of judicial functions. ठीक है? ये कौन से ईयर से चेंज हुआ? देखो, ये ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था, समझो पहले बात को, कि जज तो पहले भी थे, यूरोपियन जज भी हुआ करते थे, लॉ पहले भी था, जज थे, मजिस्ट्रेट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। जब आईएएस के माध्यम से, पहले आईसीएस था, पहले इंपीरियल सिविल सर्विस था, बाद में वो इंडियन सिविल सर्विस, फिर बाद में एएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये एएस की बात हम कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? एसडीएम बनेगा, उसके डीडीसी बनेगा, सीडीओ बनेगा, फिर डीएम बनेगा, ऐसा बनता है। तो उनके पास पहले, जब ये तो नॉन जस्टिसेबल है ना, तो जहां जहां जैसे समझ में आ रहा था, धीरे वो रूप ले रहा था। जुडिशरी की बात ये नहीं, एक सिंगल गो में कोई नहीं कर सकता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, यहाँ ये तो जस्टिसेबल तो धीरे धीरे करेंगे ना, इसका मतलब ग्रेजुअल होगा। इसका मतलब क्या, पहले पब्लिक ओपिनियन बनेगा, कई पिटिशंस आएंगे, कोर्ट ने देखा, सुनवाई होगा, ध्यान दिया जाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव सलाह मशविरा करके बैठ। ये इस टाइप का चैप्टर है, ये वाला पार्ट क्लियर है। ये वाला तुरंत 32 वाला पार्ट नहीं गया वहाँ रिट मिली शुरू, ये वो नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, ये आराम से काम करने वाला, कई साल लग जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, मजिस्ट्रेट तो उसमें भी थे, लेकिन लार्जली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के पास भी जो मजिस्ट्रेट का था, उसको उससे अलग करके उसमें दे दिया। ये क्लियर है सभी को? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आइए नेक्स्ट, हम लोग किस में चले? 40, अब कौन है? 51। आइए 51 और लास्ट आर्टिकल जो है इसका, डीपीएसपी का 36 से 51 तक है, हम लोग गॉट में डीलिंग विद 51 में क्या है लिखिए? इस्टेब्लिश करना है क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति, नेशनल सिक्योरिटी और शांति तो हो ही नहीं पा रहा है, इंटरनेशनल पीस की बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। To establish the state shall take steps to implement. The state shall take steps to implement. The state shall take steps to implement. Yes, to establish international peace and security. क्या इसमें अगर कोई बोलेगा इस आर्टिकल के तहत, इफ इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ स्टेट टू मेंटेन गुड रिलेशन विद द नेबर्स, विल इट बी रॉन्ग? नो, इट विल नॉट बी रॉन्ग। इट्स गुड। इफ इट encourages the settlement of the international disputes with the intervention of the Indian affairs, will it be wrong? No, it will not be wrong. तो ये सब सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर है?
तो आपका एक बार देख लीजिए डीपीएसपी और एफआर, सारा पलट के पन्ना पलटने में आप लोग माहिर हैं। अच्छा देखो 48A भी हम लोग किए थे क्या? अच्छा ये सेपरेट लिख लो कि 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन सा आर्टिकल इंक्लूड हुआ था। देखिए अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी, पहले आया 39A, to provide free legal aid to poor. दूसरा हुआ 43A, participation of workers in the management of industries. क्लियर है? फिर आया 48A, तो 48A जो है वो लिख लीजिए प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग इन्वायरमेंट कॉमा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब किससे कब आया? 1976 में, 1976 में। अच्छा कल हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल 38, देखो तो चलो 38 जो लिखा है देखो तो, चेक करो 38, वापस आओ 38 पे। 8 क्या था उसमें देखो तो, हाँ, तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात की रही थी, किस मामले में? स्टेटस, फैसिलिटीज और, तो ये लाइन ऐड हुआ है इसमें 44th से, ये लिख लीजिए। सेक्शन 2 कहते हैं इसको, बोलते हैं 38 सेक्शन 2, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज से लेकर अपॉर्चुनिटीज क्लियर है? लाइए कहाँ लिखा है देखें आपका, एक मिनट, 38 लिखा था कल। पूरा 38 क्या लिखे हैं, एक मिनट चेक करूँ। और भी कुछ लिखा है उसमें, देखो चेक करो। 38 देखो 38 का 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये मिनिमाइज वाला सेक्शन 2 है, समझो बात को, जो ऐड हुआ कब? और 44 में संविधान संशोधन के माध्यम से, 44 से। क्लियर हो गया? इसका फर्स्ट भी मैं लिखवाया था कल, देखो चेक करो।
तो ये था क्या minimize the inequalities for obtaining socio-economic and political justice. सर यही से शुरू किया था. नहीं तो इसमें एक फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट ये सेक्शन 1 है, ठीक है. द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. By securing and protecting क्या लिखा? By securing and protecting as effectively as it may, as effectively as it may, a social order in which socio-economic and political justice shall inform all the institutions of national life. अब इसको पढ़ के जरा समझाइए हमको. All the institutions of national life. All the institutions of national life. देखिए ये सारा चीज अब हो गया है. अगर मैं कुछ गलत लिख दिया पुराने लोगों का जिनका हो गया, जो डे 1 से थे, ये भी हमारा पूरा हो गया. क्लियर? द ऑल थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट पोर्शन which we proceed to exert on, that will be executive, union executive. ठीक है. तो प्रेसिडेंट होगा, उसका रिलेशन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित, ठीक है. और फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी है ऐसे, कैग, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कैग, अटॉर्नी जनरल. उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेते हैं, वैसे उसको इलेक्शन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये कैग का रोल इंपॉर्टेंट रहता है. ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? वो क्या कहलाएंगे?
उसमें प्रेसिडेंट भी है तो प्रेसिडेंट भी ऑप्शन गलत है, वाइस प्रेसिडेंट भी है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं माना गया है। कौन माना गया है? लिखा हुआ है संविधान में, इट इज कैग। ठीक है, क्यों ऐसा माना गया? अब प्रश्न ये होता है, आपके तरफ पूछा है क्यों ऐसा, वाई नॉट सीसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भाई प्रमुख न्याय महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, वो क्यों नहीं? क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, कौन है? फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पब्लिक का जो पैसा है, क्या है? पब्लिक मनी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है टैक्स के फॉर्म में, तो उससे अगर एक भी पैसा निकलेगा, वो प्रॉपर एप्रोप्रिएशन के बाद वो निकलेगा। एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होता है, तभी पैसा निकलता है। जैसे कल बजट पास हुआ है, तो वो जितना वोटिंग ऑफ ग्रांट्स में वो पैसा निकलेगा, कैसे? उसके वो एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से पैसा निकलेगा। अब देखो, यहां पे मान लिया जाए कि रक्षा बजट एक्स अमाउंट है, ठीक है, लेकिन वो एक्स माइनस 100 में ही खर्चा हुआ या एक्स प्लस खर्चा हो गया, तो ये ऑडिट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? कैग की है। और जिस मद में पैसा लगाओ, आप 1000 करोड़ रुपए निकालो, लेकिन 1000 करोड़ रक्षा के लिए था, वो स्पेस में मत लगा दीजिए आप उसमें। आप समझ रहे हो? ये कौन देखता है? इतने घोटाले जो अनंत हुए हैं, कैसे कोल स्कैम, तो ये ऑडिट से ही पता चलता है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ठीक है। ठीक है, तो आज तक हम लोग इतना ही करेंगे, कि कल से हम लोग नए यूनियन स्किल, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।